Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. I welcome you to another great episode of post-market analysis and level prediction video. Let's call it level analysis video for the next trading session that is going to be on Tuesday, since Monday is a holiday and it's a holy day since a holiday. So we are all going to enjoy the holiday and we'll discuss all about what happened in the market on Friday's trading session. Market में क्या हुआ, क्या important news थी, क्या ऐसे factors हैं इनकी वजह से market ऊपर गया और फिर sideways चला गया. Everything we'll discuss about it all, and we'll discuss what can happen on Tuesday's trading session in the market, and we'll also discuss is the bullishness back in the market or what is going to happen in the April series for the market. We are going to discuss it all today. But आगे बढ़ने से पहले I want to share an interesting story with you. It's a story that happened with me just a few moments back today. Just a few moments back at the time of sunset, me and my wife were sitting on our rooftop and enjoying some sunset with the tea, and suddenly she told me a story. I found that story to be very interesting, so I wanted it to share with you guys. She told me a story that most of us are we are built like that. हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब तक स्ट्रगल नहीं होगा तब तक आपको जीत नहीं पाएंगे. हमें जितने भी एग्जाम्पल बताए जाते हैं, चाहे वो आइंस्टाइन का एग्जाम्पल हो, चाहे वो एडिसन का एग्जाम्पल हो कि भाई थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने से पहले फेलियर हासिल किया, उसके बाद जाके उनका बल्ब सक्सेसफुल हुआ. एवरी सिंगल एग्जाम्पल दैट वी हियर राइट फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न इज shows us that आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपको एक बहुत बड़े स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट. सो वी आर हार्डवायर्ड टू थिंक लाइक दिस कि यार अगर आपको जीतना है, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना जरूरी है, तभी आप जीत सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर थॉट, दैट इज व्हाट वी आर taught from the moment we are born. But this is not the complete picture. This is not the complete picture. Let's think of it in a different way. The complete picture is something like that कि अगर आप ध्यान देंगे तो चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो थॉमस एडिसन हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो, उनको कितना भी फेलियर हाथ लगाओ, ठीक है, आई अग्री दैट उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ा होगा, बट स्ट्रगल इज ओनली वन पार्ट ऑफ द पिक्चर ऑफ सक्सेस. ठीक है, द अनदर पार्ट इज दे एंजॉयड द प्रोसेस. ठीक है, अगर थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेलियर हाथ लगा और वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे होते, ठीक है, 1000 बार तक फेल होते वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे होते, तो क्या आपको लगता है सीरियसली वो 1000 बार तक कोशिश करते? Won't he would have given up on his research? क्या वो छोड़ नहीं देते पहले ही? So the thing here to notice is that you have to enjoy the process, my friend. If you can really enjoy learning, if you can really enjoy the process of learning how to trade in intraday market, if you can really enjoy to learn about the stock market, then there's high chance that you will win. You know, struggling to win is one part of the process because struggle is always there. Eventually, the struggle leads to success. That I understand. But ask yourself this first. क्या आप जब इंट्राडे ट्रेड्स लेते हैं तो आप पूरे समय स्ट्रेस में रहते हैं? क्या आप पूरे समय परेशान रहते हैं? इफ इट इज लाइक दैट, देन आई एम श्योर यू आर नॉट enjoying the process, you are not having fun out of the process. So make sure that you keep your trades light, make sure you manage your position size, make sure you manage your risk to reward ratio, and these all things are going to help you to enjoy the process of trading. So having fun is one of the most important aspect of trading, or for that sake, for having fun is the most important aspect of getting successful in any field of our life. So that was one story that I wanted to share with you. Now we'll quickly start with the analysis, what happened on Friday's trading session and what can happen on Tuesday's trading session. Just in case अगर आपको स्टोरी समझ में आई हो और पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं. My question to you is, do you enjoy your trading sessions? Do you enjoy the learning part of it? Is it fun for you? क्या आप जो लर्निंग होती है उसको एक फन के तौर पर ले पाते हैं, एक अच्छे एंजॉयमेंट के तौर पर ले पाते हैं? If yes, you can tell me in the comments below. And this is Utkarsh Bhargav. You are watching Rolling Bulls, the stock market show. तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं. लेट मी क्विकली टर्न ऑन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर यू. ओके, यस, फाइन. सो वील क्विकली जंप इनटू द post market bites. We'll quickly look at the analysis, what happened on Friday's trading session and what can happen
ahead we'll discuss that too as well. Okay, so Nifty opened the day with a gap up of 180 points, and if you look at the close, निफ्टी क्लोज भी तकरीबन 180 पॉइंट 182 पॉइंट के आसपास जाकर ही हुआ है. सो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हुई. ठीक है, ये ना दिन भर निफ्टी ने कोई खास मोमेंटम नहीं दिया. जो भी मोमेंटम था वो गैप अप के साथ खत्म होके और साइडवेज चला गया. सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंड विद बैंक निफ्टी एज वेल. इट वाज अ रेंज बाउंड मार्केट फॉर फ्राइडेज ट्रेडिंग सेशन. निफ्टी क्लोज द डे एट 14507. इट वाज अप बाय 182 पॉइंट्स एंड 1.27%. इट वाज एग्जैक्टली द सेम एज द ओपन लेवल. सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काफी साइडवेज टाइप का मार्केट रहा. Now secondly, Bank Nifty also had a very muted movement. ठीक है, Bank Nifty also opened with a gap up and it just moved over 400 points during the whole day. After opening with a gap up at 33,610, the index moved sideways and managed to close just above the level of 33,100. ठीक है, so Bank Nifty closed above 33. The Bank Nifty closed the day at 33,318 and it was up by 311 points. Okay, so 33,100 का जो लेवल था इट वाज वेल रिस्पेक्टेड और उसके ऊपर ही दिन भर ट्रेडिंग होती रही बैंक निफ्टी के अंदर. ठीक है, सो दैट वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग. अदर देन दैट एवरी सेक्टर, ऑल द इंडाइसेस क्लोज्ड इन ग्रीन फॉर द डे. All the sectors closed in green for the day. Nifty metal जो कि थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन बहुत ही जबरदस्त फॉल देखने को मिला था. इट वाज बैक अप बाय 3.68% ऑन फ्राइडे. निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी रियलिटी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी ऑटो also closed more than 1% up for the day. Now one of the important news on Friday's trading session was that Tata Group stocks went up and they shot up primarily because of the Supreme Court order that backed up the Tata Sons in the process of removal of Cyrus Mistry from the chairmanship of Tata Group. So that was important, जिसके कारण आप अगर देखेंगे तो तकरीबन 11:20 11:25 के आसपास अगर आप देखेंगे तो टाटा के जितने भी स्टॉक्स थे वो सभी जबरदस्त शूटअप किए. इनफैक्ट इतना शूटअप किए कि दे मेड अ डिफरेंस टू द इंडेक्स इटसेल्फ. निफ्टी ऑल्सो शॉट अप एट दैट मोमेंट. इफ यू विल लुक एट द चार्ट्स, वी विल सी इट देयर. सो दिस वाज वन थिंग दैट was important for the stock market on that particular day, on Friday's trading session, and it was very interesting to see how this particular thing, this Tata news lifted the entire stock market up, and even though it later stabilized, आप जाके अभी भी चेक कर सकते हैं 1 से 2% ऑलमोस्ट हर स्टॉक में मूवमेंट आया है टाटा के. 11:25 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, मेटल स्टॉक्स वेंट टू क्लोज इन ग्रीन. व्हाई? बिकॉज मंथली प्रोडक्शन डेटा फॉर मार्च विल बी आउट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के फर्स्ट वीक में मंथली प्रोडक्शन डेटा आ जाएगा मार्च का कैसा रहा, एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट द मंथली प्रोडक्शन डेटा विल कम आउट टू बी गुड. तो उस एक्सपेक्टेशन के कारण जो है बाइंग आ रही है. ठीक है, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग, द बायर्स आर रिस्पेक्टिंग द लेवल्स एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट मंथली प्रोडक्शन डेटा अच्छा आएगा, तो चांसेस हैं कि मेटल स्टॉक्स ऊपर जाएंगे. सो व्हाई नॉट बाय एट लोअर level. So they have already bought a lot of stocks, a lot of lower level stocks in the metal zone. ठीक है, so Tata Steel was up by 6%, SAIL was up by 6.23%, Hindalco was up by 4% and Jindal Steel was up by 4.8%. Overall, if we ignore the gap up, अगर हम gap up को इग्नोर कर दें और उस मेजर इवेंट को इग्नोर कर दें, और टाटा ग्रुप के लिए एक मेजर न्यूज इवेंट था, अगर हम इन दोनों चीजों को इग्नोर कर दें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कुछ कंसोलिडेट टाइप के रहे दिन भर. कोई खास ऐसा अब बड़ा मोमेंटम हमको दिन भर ही देखने को नहीं मिला. एंड we'll also discuss about the FII DI data की क्या रहा. FIIs for the first time very almost sold negligibly. 50 करोड़ के आसपास की ही सेलिंग आई, and DIs bought a lot. So we'll discuss about it. Overall, if we okay, so Maharashtra government is set to take a decision after 2nd April. क्या होना चाहिए, क्या फुल लॉकडाउन होना चाहिए स्टेट के अंदर या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं. So this might have some effect. I'm not saying a lot of effect, but this might have some effect on the stock market because overall भी देखा जाए तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी वीक ही हैं. दे आर नॉट सो गुड. सो दिस माइट हैव सम इफेक्ट ऑन द मार्केट्स. वील हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट. And looking down, if we'll see, Nifty has a good support at 14,500 levels, 14,200 levels, and then 14,000 levels. We'll also discuss it with the option chain as well. Right now, we'll go into the option chain and we'll discuss it there also. And April series has opened with some positivity. Now, let us hope that 14,750 will be taken out soon. And if 14,750 level, if this is taken out soon, we can confirm that there is some bullishness in the index. Okay, but this has to be taken out. For that, then we may expect Nifty to move towards 15,000 or 15,100. That is one thing that we can expect if this happens in the April series. Now we'll go to our okay, yes,
So for Nifty, if you will see, you can see there's 42 advances and just 7 declines. So that was a very good advance to decline ratio. Finally, Nifty shows some bullishness, and again, I cannot say very well कि नहीं market ऊपर ही जाएगा, because this is the first sign of लिटिल बुलिशनेस, और मे बी जस्ट अ साइन दैट यहां से और नीचे नहीं जाएगा. हो सकता है कुछ समय यहां कंसोलिडेट करे, हो सकता है होल्ड करे, एंड देन इट इज पॉसिबल दैट इट माइट गो अप. सो दैट्स वन थिंग. लेट्स क्विकली लुक एट द FII DI data for 26th of March trading session. Yes. So if you look at FIIs only sold for 50 crores. That was almost negligible. अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे, so they were selling for 786 crores, 100 crores, almost 2000 crores, and then 3300 crores, and this is just almost negligible. It was just 50 crores of selling by the FIIs. And if you look at the DII figure, DIIs have been buying heavily. जब से FIIs sell कर रहे हैं, तब से DII buying कर रहे हैं. So you can see that on March 24 it was 612 crores worth of buying by DII, then it was 2200 crores worth of buying by DII, and on the last trading session it was on 26th of March it was 1700 crores worth of buying by DII. Hence we can see that the markets were almost stabilized. They didn't fall after gap up, they went sideways. Okay, so this was one a thing that had to be discussed. If you look at the volatility index has fallen down. It has fallen down. If you look at it here, okay, yes, here is the 26th March trading session. So if you look at it, yes, it has fallen down. It is approximately back at the level of 20.26. इसको 20 के नीचे होना जरूरी होता है मोस्टली, अगर एक अच्छी सपोर्ट बेस्ड बाइंग बुल्स को चाहिए होती है. तो बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी व्हेन इट कूल्स डाउन, द ऑप्शन प्रीमियम्स आर इन फेवर ऑफ द बुल्स. ठीक है, तो इसको अगर 20 के नीचे आ जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू हैव सम बुलिशनेस बैक. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर थिंग. अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको चार्ट्स पे बहुत सारे लेवल्स दिखते हैं. ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो आपको दिख रहे होते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं. इट्स अ बोनस मास्टर क्लास दैट यू कैन गो एंड अटेंड. जस्ट गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट. दैट इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ रोडिंग बुल्स. यू विल फाइंड मी देयर, एंड दिस इज द recent video that we have posted. If you look for it, you will find it here. Support and resistance secrets, powerful strategy to book profits in stock market. Now you can go there. आपको यहां पे सारी बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सपोर्ट कैसे बनाया जाता है, रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, ये दोनों चीजें होती क्या हैं, और कैसे इनके थ्रू इफेक्टिवली आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, कहां से आप ट्रेंड रिवर्सल एनालाइज कर सकते हैं, कहां से आप बाइंग देख सकते हैं, कहां से आप सेलिंग देख सकते हैं, ब्रेकआउट्स कहां देख सकते हैं. सारी चीजें हमने इस बोनस मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हैं. गो फॉर इट, सर्च फॉर रोडिंग बुल्स और सर्च फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट, एंड यू विल फाइंड दिस मास्टर क्लास वेरी सून. इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा. सो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू गो थ्रू दिस मास्टर क्लास. इट्स एन अमेजिंग मास्टर क्लास टू अटेंड. गो एंड वॉच इट. इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग स्टाइल. नाउ वी लुक एट द निफ्टीज ऑप्शन चेन. अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट डेटा को अगर थोड़ा एनालाइज करेंगे आप, वी आर लुकिंग दिस एट sensible.com. www.sensible.com. आप में जो लोग जानना चाहते हैं कि ये कहां देख रहे हैं हम, go to sensible.com. you'll get to have a look at all of it. They very well represent the whole option chain. You can also look at this option chain at NSE website, but then यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में ज्यादा बेटर तरीके से आपके पास प्रेजेंट हो जाती है. So I prefer this, and that's also very much updated. So अगर आप देखेंगे 14,000 के लेवल पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ. ठीक है, 32.4 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड एंड जस्ट 12.9 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड. सो 14,000 आई कैन से इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट लुकिंग एट द ऑप्शन चेन. आई डोंट थिंक निफ्टी वुड फॉल बिलो दिस एज ऑफ नाउ. अप्रैल सीरीज माइट ट्रेड बिटवीन 14,000 टू 15,000. ये मेरी एक्सपेक्टेशन अप्रैल सीरीज के साथ. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बहुत क्लैरिटी नहीं ऑप्शन चेन में, क्योंकि फ्राइडे के दिन जब फ्रेश थर्सडे के नाइट के दिन आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है, क्योंकि ओआई डेटा ऐड नहीं हुआ होता है फ्रेश वीकली एक्सपायरी के लिए. बट नाउ इट्स अ लिटिल क्लियर. फ्राइडे के दिन ओआई डेटा में चेंज आया है, सो वी हैव अ बिट मोर क्लैरिटी ओवर हाउ ऑप्शन चेन लुक्स लाइक. ओके, सो 14,000 सीम्स लाइक अ गुड सपोर्ट. अगर हम अगले अच्छे सपोर्ट की बात करें तो 14,300 और 14,400 का जो जोन है ना, ये भी एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है आपके लिए. एज ऑफ नाउ निफ्टी इज ऑलरेडी अबव 14,500. ठीक है, सो 14,500 के ऊपर अगर है तो नीचे आपको निफ्टी यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है इस जोन के अंदर. ऊपर की ओर अगर हम बात करें
there's a major resistance available at 15,000. now this is a big resistance. okay, so 15,000 तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस हो गया. उसके पहले कहां रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा? 700 से 800 की रेंज में निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है इन केस ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है. ठीक है, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट जोन. इन केस दिस जोन ब्रेक्स आउट देन निफ्टी माइट गो टू 15,000 और 15,100 लेवल्स. दिस इज पॉसिबल. ओके, सो एज पर द ऑप्शन चेन हमने बात कर ली है. निफ्टी के चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं. Wow, it looks so beautiful. Why does it look beautiful? Because it respects all the levels. It respects all the levels. अगर आप जाके नहीं देखें अभी तक तो देख लीजिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके जो वीडियो मैंने मास्टर क्लास बना रखा है. It's going to be very important for you. You are going to love it because the index respects your levels. क्या आप देख सकते हैं कि 26 मार्च के दिन, ठीक है, 26 मार्च का दिन हम यहां पे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं. 26 मार्च के दिन अगर आप जाके देखेंगे, लेट मी zoom it a bit for you. yes, अगर आप देखेंगे तो कैसा रहा 26 मार्च के दिन. ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग हमको यहां से, आपका 26 मार्च का दिन है. ठीक है, दिस इज योर 26 मार्च डे. एक गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिली. ठीक है, एक मेजर गैप अप ओपनिंग. उसके बाद इंडेक्स ने हमारे रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट किया, हमारे सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट किया. एंड दिस वाज द टाइम, अप्रोक्सीमेटली दिस वाज द टाइम वेयर देयर वाज न्यूज विद द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड द होल टाटा स्टॉक स्टार्टेड मूविंग अप. ठीक है, सो इट स्टार्टेड मूविंग अप स्लोली, इट ब्रोक द रेजिस्टेंस एंड देन इट वेंट साइडवेज इवेंचुअली. ठीक है, इसके बाद यहां से यहां तक के अंदर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एज सच कोई खास बनती ही नहीं थी. मॉर्निंग के अंदर जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती थी वो हमने ऑलरेडी ट्रेड सेटअप लेके इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर कर लिया था. उसके बाद कोई मेजर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी. ना तो आप एज अ कॉल बायर पैसा बना सकते थे, ना पुट बायर पैसा बना सकते थे. एज सच दोनों तरफ आपके बहुत मेजरली स्टॉप लॉस हंट हो जाते. ठीक है, बट एज एन ऑप्शन सेलर दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी हियर, अ लाइट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज टाइम डिके का थोड़ा सा फैक्टर इन हो जाता है. सो दैट वाज अ गुड थिंग, बट वील टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन बायर. सो यहां से यहां तक कोई ऐसा बहुत मेजर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम इसके अंदर पैसा बनाएं. इट जस्ट केप्ट मूविंग बिटवीन द रेंज ऑफ 14,500 टू 14,570 समथिंग. ओनली 70 पॉइंट रेंज इट केप्ट मूविंग बिटवीन दिस कंटिन्यूअसली. सो no opportunity over there. Once our stop loss also got hunted in this because it was showing some sign of bullishness over here and this level could have been taken out but nahi gaya. So it's okay, our stop loss was hunted and we exited the trade. Our simple rule is कि अगर 2 बार stop loss hunt हो जाए हमारा, so we don't trade anymore. But उस दिन के दिन, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन तो ये बहुत एविडेंट और बहुत क्लियर था कि मार्केट बहुत साइडवेज है, रेंज बाउंड मार्केट है. So we didn't trade much. I clearly mentioned it on Telegram that it's a useless market for the day. After 12 o'clock, nothing was happening in the second trading session. So we didn't trade neither in BankNifty, neither in Nifty 50 index. Okay. So this was the only moment where you could have captured the trade and we did capture this trade in the BankNifty index. So this was one thing. अगर हम बात करें कि क्या chances हैं आने वाले trading session में, ठीक है, तो अगर हम levels की बात करें, so you can say that if we don't see a major gap up, if we see a flat opening, यहीं कहीं अगर मार्केट खुलता हुआ दिखता है, तो अगर मार्केट हॉल्ट करता है इस लेवल पे 14,500 के लेवल पे, इस चीज को आप मार्क के लिए जो मैं बोलने वाला हूं. ठीक है, 14,500 के लेवल पे अगर मार्केट 1 घंटा भी हॉल्ट कर जाता है बिना गिरे, देन देयर आर चांसेस दैट इट विल शूट बैक अप. ठीक है, बट इन केस अगर ये लेवल फर्स्ट हाफ आवर, फर्स्ट 1 आवर में ब्रेक हो जाता है, देन यू माइट सी निफ्टी फॉलिंग बैक टू 14,416 लेवल. दैट इज योर फर्स्ट सपोर्ट. इसके नीचे का सपोर्ट तो आपको ऑलरेडी पता ही है. Let me bring it up for you. Yes, so your second support is almost this level. Which level? 14,264 is your support 2. Support 1 is 14,416. ठीक है, 14,416. इन दोनों लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इन लेवल्स का. मैं फिर से आपके लिए लिख देता हूं 14,416. ये आपकी पहली लाइन बनी हुई है सपोर्ट लाइन, और सेकंड सपोर्ट इज अवेलेबल एट 14,264. इससे नीचे मुझे इंडेक्स जाता हुआ फिलहाल को नहीं दिख रहा है. ऑल्दो मैंने आपको जो बताया, अगर इंडेक्स इस लेवल पे हॉल्ट करता है पहले आधे घंटे या पहले 1 घंटा, तो देयर आर चांसेस इट विल स्टार्ट गोइंग अप एंड इफ इट विल गो अप, तो कहां पे रेजिस्टेंस उसको मिलेगा इंडेक्स को, ये आप जरा समझने की कोशिश करिए. इंडेक्स विल फेस अ गुड रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली एट दिस जोन. ठीक है, 14,750 से लेके 14,600 तक का जो जोन है, यहां पे एक रेजिस्टेंस इंडेक्स के लिए अवेलेबल है. सेकंड रेजिस्टेंस इज अवेलेबल एट 14,677. ये ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस मार्क्ड है. ठीक है, तो आपको यहां तक इंडेक्स जो है रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है अगर अपर साइड में इंडेक्स जाता है तो. ठीक है, हम कंप्लीट इंडेक्स में बुलिशनेस आ गई, ये कब कंफर्म कर सकते हैं? व्हेन द इंडेक्स विल ब्रेक दिस लेवल. विच लेवल?
14,847 का लेवल जब इंडेक्स ब्रेक करेगा तब हम कह सकते हैं कि इंडेक्स अब यहां से ऊपर की और एक रास्ता बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह रेडी है, ठीक है। बट इसके पहले हम कंप्लीट बुलिशनेस तो नहीं कंफर्म कर सकते, ओके। सो दैट्स वन थिंग। नाउ वील टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो ऑप्शन चेन क्या बोल रही है? ऑप्शन चेन ये बोल रही है कि आपका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो मेजर सपोर्ट लेवल अवेलेबल है 32,000 के लेवल पे। दिख रहा है आपको 32,000 का लेवल? यहां पे आपका एक मेजर सपोर्ट अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड एट 33,318। मेजर सपोर्ट 32,000 के लेवल पे अवेलेबल है, ठीक है। इससे नीचे जाना कठिन है बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए, यहां से नीचे तो नहीं जाएगा। बट कहां तक जा सकता है? इट कैन डेफिनेटली गो टू 33,000 लेवल। यहां पे एक माइनर सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज अ सपोर्ट 1 एंड दिस इज अ सपोर्ट 2। इसको हम अभी अकाउंट में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर इनकेस 33,000 का लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है सो यू माइट सी द इंडेक्स फॉलिंग टू 32,500 वेरी इजीली एंड देन टू 32,000। But as of now, there's good support available at 33,000 level and resistance की अगर हम बात करें, so the resistance you can see at 34,000 level. Very good resistance, 7.6 lakh open contracts on the call side and just 2.3 lakh open contracts on the put side. तो अगर हम option chain को देखते हुए खाली बात करें, so you can expect the index to trade between, let me again mark the levels, 33,000 to 33,900 और 34,000। ये जो है आपका ट्रेडिंग रेंज हो सकती है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंडेक्स के लिए, ठीक है। दिस इज योर सपोर्ट जोन एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन फॉर द इंडेक्स एज पर द ओआई डेटा, ओके। नाउ वी लुक एट द बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स को अगर आप देखेंगे, अगेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन सभी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो मास्टर क्लास, जाके देख लीजिए। निफ्टी के अंदर फिर भी एक बुलिशनेस थी। Tata stocks went up, so Nifty had some signs of bullishness. If you look at Bank Nifty, it was completely useless, like completely useless. ये जो पूरा आपको गैप अप दिख रहा है, इसके बाद इंडेक्स कंप्लीटली एक रेंज के अंदर ट्रेड किया। द रेंज वाज बिटवीन 33,297 और 290 टू 33,590 और 580 वी कैन से, या दिस वाज द रेंज। ये 200-250 पॉइंट की रेंज के अंदर इंडेक्स पूरे समय मूव करता रहा एंड इट डिडंट गिव एनी चांस टू द ऑप्शन बायर और द एज एन ऑप्शन बायर डिडंट गिव एनी चांस फॉर द कॉल बायर्स और द पुट बायर्स, दोनों को कोई ऐसा खास मौका नहीं मिला। अगर आपने इस मूवमेंट पे सोचा हो कि नाउ दिस इज द कंफर्मेशन, इस कैंडल के साथ सोचा हो इज द कंफर्मेशन इट इज गोइंग टू गो अप, यहां आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। अगर आपने इस मूवमेंट पे सोचा हो नाउ इट इज गोइंग टू गो डाउन, यहां आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। आपने कुछ भी सोचा हो, यहां पे आपका जो है स्टॉप लॉस हंट हो जाता दोनों तरफ। आपने अगर अभी तक ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली मास्टर क्लास नहीं देखी हो तो उसको जाके इसीलिए भी देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने कंसेप्ट की बात करी है। द कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? अगर आपको कोई ये बोलता है कि यार आई गारंटी यू दैट यू विल विन 100% विथ मी, नाउ I would say, please don't believe in those kind of people who say that your 100% of the calls will work or 100% of there's 100% probability of winning, because there is nothing called as 0% or 100% probability of winning in stock market, ठीक है। There's nothing called as this. All you can do is manage the probability. What is managing the probability? यानी कि आप सिर्फ अपनी विनिंग की प्रोबेबिलिटी को 50% से ऊपर बढ़ा सकते हैं। आप उसको 60% कर सकते हैं या 70% कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी वेरी श्योर कि 100% में जीतूंगा ही। और ये आप कैसे कर सकते हैं? इट्स सिंपल, जस्ट बाय मेकिंग श्योर दैट यू फॉलो योर लेवल्स, जस्ट बाय मेकिंग श्योर दैट यू बिलीव इन एनालिसिस, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीजें भी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने हारने की प्रोबेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और इवन इफ यू विल विन, इट माइट बी अ फ्लूक, इट माइट बी जस्ट अ तुक्का कि आप जीत गए। अगर आपको लॉजिक बेस्ड ट्रेडिंग करना पसंद है, देन आई विल से you stay in the stock market, otherwise you can leave stock market and go, my friend, because the stock market is a very deadly place for people who don't believe in logics. A stock market is a very deadly place for people who don't believe in learning, and आपका पूरा कैपिटल आप एरोड कर लेंगे अगर आप लॉजिक और लर्निंग में बिलीव नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू कम विद अ विल पावर टू लर्न एंड यू कम विद अ कैपिटल, यू कम विद अ एक्सेस कैपिटल जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मैं जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट फुल टाइम करना चाहता हूं। आई से नो, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? जॉब इज अ सिक्योरिटी फॉर यू। सॉरी, जॉब इज अ सिक्योरिटी फॉर यू। अगर आप जॉब छोड़ देंगे देन you cannot risk your money in such state of mind, ठीक है। आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा जॉब छोड़ने के बाद कि अब मुझे स्टॉक मार्केट से ही पैसा बनाना है। you will be pressurized to make money from it and then you will make mistakes, you will trade in FOMO after that. So if you have a job or a business, I will suggest you
keep trading as a good avid learner, keep trading as a good person, good trader with a good mindset in the stock market, and keep your job or your business with you, because that should be your primary source of income as of now. जब तक आप फुल टाइम ट्रेडिंग के अंदर नहीं आ जाते, जब आप इतना सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको उसमें टाइम लगेगा, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट टेक्स टाइम। जब आप इतना सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप फिर फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, बट दैट टेक्स 4, 5, 6 years of time. Till then, stay with your job, stay with your business, and keep trading, keep learning. Trading is definitely a very good source of side income only if you want to learn. So what could be the levels for Bank Nifty index for the next trading session? Your support would come around at 33,042. ठीक है, यहां कहीं आपका सपोर्ट आएगा. दिस इज योर सपोर्ट 1. ओके, सो यहां पे आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट सपोर्ट अगर इंडेक्स नीचे की ओर जाता है तो कहां आएगा ये हम देख लेते हैं. अगर इंडेक्स नीचे की ओर जाता है तो नेक्स्ट बिग सपोर्ट विल कम एट 32,809. ठीक है, यहां पे बहुत क्लियरली दिख रहा है. मैं एक बार इसको वापस ऊपर कर देता हूं ताकि आपको और क्लियरली दिखे. लेट मी शो यू द सपोर्ट जोन. यस, सो दिस इज योर सपोर्ट. सपोर्ट 1 विल कम एट 33,042 level. This is your support 1. Support 2 will come at 32,809. This is your support 2. ये दोनों लेवल्स आपके मार्क कर लीजिए. ये आपके लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, दैट इज ऑन ट्यूसडे. अब रेजिस्टेंस कहां है हम ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस से बहुत अंतर पड़ता है. आपका इंडेक्स ऊपर जा पाएगा या नहीं ये रेजिस्टेंस से डिसाइड होगा. ठीक है, सो योर रेजिस्टेंस विल कम एट, सबसे पहला योर रेजिस्टेंस विल कम एट 33,593 level. This is your first resistance. Your second resistance will come it at 33,709. इन दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए. ये आपके हो गए रेजिस्टेंस जोन्स. ठीक है, यानी कि यहां पे इंडेक्स अगर हॉल्ट करता है तो हो सकता है इंडेक्स यहां से नीचे आ जाए. इन केस हॉल्ट करके बायर एक्यूमुलेट होते हैं यहां पे, देन वी माइट सी अ ब्रेकआउट. ओके, इन केस यहां पे अगर हॉल्ट करता है इंडेक्स और बायर एक्यूमुलेट होते हैं, सेलिंग प्रेशर कम होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने बाय द वे बात करी है मास्टर क्लास के अंदर. गो एंड वॉच इट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मास्टर क्लास, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं. बायर अगर यहां एक्यूमुलेट होते हैं एंड इफ वी कैन सी दैट देयर इज सम पोटेंशियल ब्रेकआउट हैपनिंग हियर, इट कैन हैपन. वी विल डिस्कस इन द लाइव मार्केट एंड आई विल अपडेट यू ऑन द रेड सर्कल ग्रुप ऑन टेलीग्राम इटसेल्फ. सो दिस इज गोइंग टू बी द लेवल्स फॉर निफ्टी 50 and the bank nifty index for the next trading session. I hope आपको लेवल्स में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि लेवल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, एंड आई होप आपको स्टोरी भी समझ में आई होगी. द स्टोरी वाज सिंपल, द स्टोरी जस्ट सेट द इंपॉर्टेंस ऑफ, जो स्टोरी मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करी थी वीडियो चालू होते समय, द स्टोरी वाज ओनली अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग फन while you trade. The story was about the importance of having fun while you learn about the stock market. अगर आप किसी चीज में फन ढूंढ लेंगे ना तो आपको उस चीज को करने के पीछे पैशन आ जाएगा, आपको उसको करने का मन करेगा. So make sure that you have fun while you trade, you have fun while you learn, you have fun while you earn from the stock market. Okay, do not overstress yourself, do not overstress yourself over the fear of losing money. Do not overstress yourself with the greed of earning money. यार स्लो प्रोसेस है. आपको जो भी बोलता है ना कि यार 100% श्योर हूं मैं कि आज से आप स्टॉक मार्केट चालू करोगे, नेक्स्ट मंथ से 1 लाख रुपए आने लगेगा, आई से प्लीज डोंट बिलीव इन देम, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ वेरी डेडली प्लेस फॉर पीपल हु डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस. इट्स अ वेरी डेडली प्लेस फॉर पीपल हु कैन नॉट कंट्रोल देयर fear of missing out, who cannot control their mind, who cannot control their greed or their fear. उन सब के लिए stock market it's a hell. So stay away from stock market if you cannot control your emotions, and stay in the stock market if you are willing to learn, my friend, because then there are high chances that eventually you will start earning. Treat trading as a business and you will be good to go after a year or so. But till then you have to have patience, you have to keep your capital saved, you have to keep your capital preserved, and make sure that you don't give up on the process of learning. So this was my advice for all the new traders that has joined the Roaring Bulls family today. And अगर आपको ज्यादा सीखना है और ज्यादा आप समझना चाहते हैं, ज्यादा बेहतर मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू ज्वाइन द रोरिंग बुल्स रेड सर्कल ग्रुप. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए रेड सर्कल की लिंक भी है, जस्ट 999 रुपीज पर मंथ, एंड दैट यू कैन अकाउंट फॉर द कॉस्ट ऑफ लर्निंग, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लर्निंग ऑलवेज it's very important, वो हमेशा रहेगी. learning is always good and learning will always help you to make sure that you win in your business, in your life, in your trading career, anywhere. Learning helps. Okay, so feel free to be a part of Roaring Bulls Red Circle family. In case अगर आप फ्री टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. I regularly post प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट अपडेट्स ओवर देयर, और साथ में हम इंट्राडे लेवल्स, इंट्राडे चार्ट्स भी फ्री टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करता हूं मैं, उससे भी आप अपडेटेड रह सकते हैं. उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन
में है. So I hope you guys have enjoyed this video and I wish you a very happy Holi and a very happy holiday tomorrow. I hope that you are going to enjoy safely, stay safe, stay indoors as much as possible, because this is the important time where we hold each other's hand in terms of showing the nation's strength to fight against the coronavirus, the COVID thing. So I think we all can do our bit into it by wearing masks, by not being very public, by not going outside too much, by staying safe, and by keeping our family and friends safe. So this is Utkarsh Bhargav, you're watching Rolling Balls, the stock market show.